ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق، ایرانی وزیر خارجہ بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد جان سے گئے۔ گورنر تبریز بھی ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ ابراہیم رئیسی ایران اور آذربائیجان سرحدی علاقے میں ڈیم کے افتتاح کے بعد تبریز جا رہے تھے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ پہاڑی سے ملا۔ مشکل وقت میں پاکستان ایران کے عوام کے ساتھ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا ہیلی کاپٹر حادثے پر رد عمل، کہا ایرانی صدر کا دورہ تاریخی تھا، مختلف معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ ایرانی صدر کے دورے میں مل کر آگے بڑھنے پر بات ہوئی تھی۔ ایرانی صدر نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بعد لاہور اور کراچی بھی گئے تھے۔ پریشانی کی گھڑی میں ایران کے عوام کے ساتھ ہیں۔ اس فلائٹ میں ہمارے ساتھ 25 اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور حالات وہاں پہ فی الحال بہت خراب ہیں۔ پاکستانی ایمبیسی یا پاکستانی گورنمنٹ کا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں، کیونکہ ہمیں کہیں کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ صرف ہماری جو مدد کر رہے ہیں وہ ہماری یونیورسٹی کی اپنی مینجمنٹ مدد کر رہی ہے۔ بشکیک سے 3 خصوصی پروازوں کے ذریعے 435 طلبہ کی وطن واپسی۔ تیسری پرواز رات 2:30 بجے 175 طلبہ کو لے کر لاہور پہنچی۔ خصوصی پرواز 180 طلبہ کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر طلبہ کے اہل خانہ اور حکام نے استقبال کیا۔ لاہور میں بھی خصوصی پرواز 180 طلبہ کو لے کر۔ زیرالعدل صاحب سفیر سے بھی رابطے میں ہیں، ہم کرگز گورنمنٹ سے بھی رابطے میں ہیں، لمحہ و لمحہ اس کی اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ جاگی ہوئی ہے، اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ یہ کوشش ہوگی کہ جو اسٹوڈنٹ واپس آنا چاہتے ہیں سب کو باحفاظت واپس لائے۔ کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ نہیں ہوئی، کوئی زیادتی کا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی کرغزستان سے آنے والے طلبہ سے ملاقات، میڈیا سے گفتگو میں کہا طلبہ خوفزدہ ہیں، انہیں ہر طرح کی تسلی دی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر طلبہ کو گھر تک پہنچانے کے انتظامات کیے ہیں۔ 4 طلبہ KP کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ہم لمحہ بلمحہ کرغزستان کی حکومت سے رابطے میں ہیں، بچوں کی سیکیورٹی بہتر کرنے کے لیے کرغزستان حکومت سے بات کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، ایسے چونکہ حالات کچھ ٹھیک نہیں ہوئے۔ رات کو جو انہوں نے وارننگ دی ہوئی تھی کہ وہ دوبارہ حملہ کریں گے، لائٹس آف کر کے کمروں میں گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں مار رہے ہیں۔ انہوں نے آج کا اور کل کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے کہ یہاں سے آپ لوگ نکل جاؤ ورنہ ہم آپ لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہمیں واپس پاکستان بلایا جائے، کیونکہ ہم ادھر بہت ہمیں تنگ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں 32 گھنٹوں سے اسی فلیٹ میں بیٹھے ہیں۔ بشکیک میں موجود پاکستانی طلبہ اب بھی خطرے میں۔ ویڈیو پیغام میں بتایا حالات ٹھیک نہیں ہوئے، کل رات پھر حملہ ہوا، طالبات پر بھی تشدد کیا گیا۔ بشکیک میں موجود پاکستانی طلبہ کی شکایات، کہا لائٹس بند کر کے گھروں میں چھپ کر بیٹھے ہیں، مقامی ہمیں جہاں دیکھ رہے ہیں مار رہے ہیں، 100 میٹر دور کینٹین بھی نہیں جا پا رہے، کھانا پینا ختم ہو گیا۔ سفارت خانے کی طرف سے مدد کے دعوے بے بنیاد ہے، ایمبیسی میں کوئی کال اٹھا رہا ہے نہ میسج کا جواب دے رہا ہے۔ بلوائیوں نے آج کا الٹیمیٹم دے رکھا ہے، کہتے ہیں ملک چھوڑو ورنہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اپنی مدد آپ کے تحت پاکستان جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہوا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اچانک مقامی جتھوں نے حملہ کیا، دروازے توڑ کر اندر گھسے، کچھ لوگوں نے الماریاں لگا کر دروازے بچائے۔ کرغزستان سے پشاور پہنچنے والے طالب علم مہر نے ARY نیوز کو آپ بیتی سنا دی، کہا فورسز آنے کے باوجود پاکستانی طلبہ کو اتنا خطرہ ہے کہ کمروں سے باہر نہیں جا سکتے، ابھی تک اس ٹرامے سے نہیں نکل سکے، یہاں گھر والے بھی اذیت میں ہیں۔ بشکیک سے خصوصی پرواز پاکستانی طلبہ کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی، 180 طلبہ وطن واپس پہنچے ہیں۔ ایئرپورٹ پر طلبہ کے اہل خانہ اور حکام نے استقبال کیا۔ لاہور میں بھی خصوصی پرواز 180 طلبہ کو لے کر پہنچ گئی۔ ملتان کے حلقہ NA 148 میں ضمنی انتخاب، پیپلز پارٹی کو واضح برتری، گیلانی ہاؤس میں جشن، جیالوں کا ڈھول کی تھاپ پر رقص اور بھنگڑے، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے سید قاسم گیلانی کو واضح برتری حاصل، سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور دوسرے نمبر پر ہیں۔ قومی اسمبلی کی نشست یوسف رضا گیلانی کے چیئرمین سینٹ بننے کے بعد خالی ہوئی تھی۔
साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास इस्लामाबाद से गिरफ्तार। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ एक कंपनी के दफ्तर में तोड़ फोड़ का इल्जाम है। सरदार तनवीर इलियास को मारगला पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। IMF के साथ नए प्रोग्राम पर पॉलिसी मुज़ाकरात और बजट पर बातचीत आज से शुरू होगी। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए सख्त मौशी फैसले करने का दबाव। 1 लाख से ज़ायद माहाना पेंशन पर टैक्स का मुतालबा। कहा नए कर्ज प्रोग्राम के लिए अखराजात और खसारे को कंट्रोल करना होगा। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड का पाकिस्तान पर ज़र मुबादला ज़खायर मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। IMF का कहना है पाकिस्तान को आलमी मार्केट में सरमायाकारी बेहतर बनाना होगी। पाकिस्तान मसनूई तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम करने से गुरेज करे। भीख मांगने के बजाय सरमायाकारी लाएं। साबिक सेनेटर मुशाहिर हुसैन सैयद कहते हैं सऊदी अरब 20-30 अरब डॉलर देगा, चीन 25 अरब दे चुका है, मजीद भी देने को तैयार है। कुवैत, UAE, कतर, ओमान के जरिए अफ्रीका तक जा सकते हैं। फैसले करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। कौम में जज्बा मौजूद है लेकिन क़यादत थोड़ी कमज़ोर है। की मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया, लेकिन मुखालफीन एहतसाब से बचने के लिए अफरा तफरी चाहते हैं। अब तो वो चीफ जस्टिस को दबंग कह रहे हैं। लगता है कुछ अरसे बाद आर्मी चीफ को भी दबंग सिपाह सालार कहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा हमारे मुखालफीन इक़्तिदार की हवस में कमर जावेद बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश कर रहे थे। ये मुल्की सालबियत और खुशहाली के सिवा बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए अहम शाहराहों पर चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत कर दी। नोटिफिकेशन जारी। आटा मिल्स एसोसिएशन के जराये का कहना है हुकूमत पाबंदियां लगाकर किसान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रही है। KP हुकूमत पंजाब की गंदम 3900 रुपये फी मन खरीद रही है। पंजाब की ओपन मार्केट में गंदम 2800 से 3000 रुपये मन फरोख्त हो रही है। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तूरू कहते हैं मकामी किसानों के बाद अब पंजाब के किसानों से गंदम खरीद रहे हैं। पंजाब से दरामदी गंदम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। गंदम थी फिर दरामद क्यों की? हुकूमती कमेटी ने ताहाल रिपोर्ट न दी। मामला तफ्तीश के लिए नैब पहुंच गया। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने नैब को तहकीकात के लिए शिकायत दर्ज करा दी। ARY न्यूज़ की खबरों का हवाला दिया। लिखा साबिक निगरान वजीर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला ने इंटरव्यू में बताया था 40 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद होने के बावजूद मजीद गंदम दरामद की गई। गंदम इम्पोर्ट के वक्त कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे। गैर जरूरी गंदम इम्पोर्ट से मुल्क को 300 अरब का नुकसान हुआ। बिजली चोरी बहुत बड़ा मसला है। एक सूबे में बिजली को सियासत की भीड़ चढ़ा दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बिजली चोरी पर बेहतर तजावीज़ की उम्मीद रखते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सोलर नेट मीटरिंग पावर सेक्टर के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। हुकूमत नेट मीटरिंग जारी रखने के हक में है। ज़रूरत हुई तो नेट मीटरिंग से मुतालिक पॉलिसी पर नज़रसानी करेंगे। सोलर सिस्टम लगाने वाले 3 साल के बजाय 1 से 1.5 साल में इन्वेस्टमेंट पूरी कर रहे हैं। 2018 के बाद पाकिस्तान की मईशत समेत हर शोबे में तनज़ुली आई, जिसे ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात इस वक्त जो कुछ भी है आप सब जानते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, बजट आने वाला है, लेकिन बजट के आने से पहले ही बड़े पैमाने पर तैयारियां हैं, टैक्स लगाए जा रहे हैं। मुल्क बचाना है तो सबको आईनी हुदूद में रहना होगा। महंगाई और बेरोजगारी खतरनाक हुदूद को छू रही हैं। IMF बजट से पहले हुकूमत को टैक्स लगाने का दर्ज दे रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में गजा मिलियन मार्च से खिताब। कहा दुनिया भर में लोग फ़लस्तीनियों के हक में खड़े हैं। हमास मुजाहिदीन ने इसराइल की टेक्नोलॉजी और गरूर को शिकस्त दी।
आर्मी चीफ से ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात, दो तरफा पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत, फौजी सतह पर ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस का इंसदाद दहशतगर्दी जंग में पाक फौज की कामयाबियों का एतराफ़, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को भी सराहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी और पाकिस्तान आर्मी ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया है। हमारा यही कहना था पहले दिन से ही कि ये ड्रोन हमला नहीं था, वो एक एक्सप्लोजिव मटेरियल था उस घर में, उसकी वजह से धमाका हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। पाक फौज और हमारा शुरू से यही मौक़िफ़ है, किसी घर में बारूदी मवाद था जिसकी वजह से धमाका हुआ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, विफाक हमारे सूबे से सौतेली माँ वाला सलूक कर रहा है। हमसे 4 रुपए यूनिट बिजली लेते हैं और आवाम को 64 रुपए में बेच रहे हैं। वज़ीर आला ने अगर सख्त जुबान इस्तेमाल की तो वो दुरुस्त की। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी, जैकबाबाद, शहदादकोट, शिकारपुर, लियाकतपुर, अलीपुर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। शेखपुरा, पाकपतन, खानेवाल में 44, जबकि लाहौर, फैसलाबाद और साहिवाल में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में 21 से 27 मई तक हीट वेव का खतरा। PDMA पंजाब का कहना है बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। हीट वेव के पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट इम्तहानात की तारीख में तब्दीली। इंटर के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से होंगे। वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत पंजाब ने हत्या इज्जत बिल मंजूरी के लिए आज असम्बली एजेंडे में शामिल कर लिया। इजलास का एजेंडा जारी। सरकारी बिजनेस में हत्या इज्जत बिल 2024 मंजूर करवाया जाएगा। तमाम सहाफती तंजीमों की जानिब से हत्या इज्जत बिल को मुस्तरद किया जा चुका है। अपोजिशन का भी बिल की मुखालिफत का ऐलान। सहाफती तंजीमों का आज पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज का ऐलान। कराची के इलाके खयाबान बुखारी में 16 साला मुलाजमा की मौत, लवाहिकीन का काला पुल पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है पुलिस कत्ल को खुदकुशी का रंग दे रही है। 4 दिन कबल मुलाजमा के वालिद ने थाना दरख्शा में घर के मालिक और मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर T20 में पहली बार हराने का मिशन। शाहीनों ने सीरीज के लिए कमर कस ली। कौमी स्क्वाड की दूसरे रोज की प्रैक्टिस। 4 मैचों की सीरीज का पहला T20 बुध को लीड्स में खेला जाएगा। विमेंस टीम को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में व्हाइट वॉश शिकस्त का सामना। इंग्लैंड ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 34 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन स्कोर किए। डैनी वाइट ने 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तान की टीम 4 विकेटों पर 142 रन बना सकी। इंग्लिश विमेंस टीम ने सीरीज में 3-0 से कामयाबी हासिल कर ली। मास्टर राशिद नसीम का एक और कारनामा। टारगेट पर कोहनी के बाद में भारतीय हरीफ को पीछे छोड़ दिया। 3 मिनट में 882 वार करके रिकॉर्ड तोड़ा। राशिद नसीम ने माथे से पेंसिल तोड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। 1 मिनट में 119 पेंसिल तोड़ी। कौमी एथलीट ने सबसे ज्यादा यार्ड्स तोड़ने का कारनामा भी अंजाम दिया।